नमस्ते बच्चों। लीप फॉर वर्ड से मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा। और हर सप्ताह हम लेकर आते हैं खास आप सभी बच्चों के लिए मजेदार कहानियाँ और कुछ नए शब्दों की श्रृंखला। तो फिर एक बार मैं आप सभी के साथ जुड़ रही हूँ आज के कहानी सत्र में। पिछले सत्र में हमने लाइब्रेरी की किताब से द टॉकेटिव टॉर्टोइज और द ग्रीडी बॉय ये दो कहानियां देखी थी। उन कहानियों में उपयोग किए गए कठिन शब्दों को और उनके अर्थों को भी समझा था। साथ ही योग संबंधित शब्दों को भी देखा था और उनके अर्थ समझे थे। आज के सत्र में हम कुछ थीम बेस्ड शब्द देखेंगे। हम लाइब्रेरी की किताब से दो दिलचस्प कहानियां सुनेंगे और हम उन कहानियों पर आधारित कुछ प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइब्रेरी की किताबों से। और हमारी पहली कहानी का नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। A monkey lived on a mango tree on the river bank. Once he saw a crocodile under the tree that looked hungry and tired. He gave the crocodile some mangoes, and the crocodile thanked the monkey and became one of his friends. The monkey would give mangoes to the crocodile every day. One day, the monkey even gave the crocodile extra mangoes to take for his wife. His wife enjoyed the mangoes but told her husband that she wanted to eat the monkey's heart. She was a wicked alligator. The crocodile was upset, but he decided that he needed to make his wife happy. The crocodile went to the monkey the next day and said that his wife had called him for dinner. The crocodile carried the monkey on his back across the river. He told the monkey about his wife's plan. The monkey had to think of something quickly to save himself. He told the crocodile that he had left his heart on the mango tree and that they needed to return. On reaching the tree, the monkey climbed the tree and spoke. I am not getting down. You betrayed my trust, which means our friendship is over. Moral: never betray someone who trusts you. Choose your friends wisely. अब आइए देखें कि हिंदी में इस कहानी का मतलब क्या है। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, यानी कि एक बंदर और एक मगरमच्छ। अ मंकी लिव्ड ऑन अ मैंगो ट्री ऑन द रिवर बैंक। नदी किनारे एक आम के पेड़ पर एक बंदर रहता था। Once he saw a crocodile under the tree that looked hungry and tired. एक बार उसने पेड़ के नीचे एक मगरमच्छ देखा जो बहुत भूखा और थका हुआ लग रहा था। He gave the crocodile some mangoes. उसने मगरमच्छ को क्या दिए? आम दिए। And the crocodile thanked the monkey and become one of his friends. और मगरमच्छ ने बंदर को धन्यवाद दिया और वो दोनों दोस्त बन गए। The monkey would give mangoes to the crocodile every day. यानी कि बंदर मगरमच्छ को हर दिन आम देता था। One day, the monkey even gave the crocodile extra mangoes to take for his wife. और एक दिन बंदर ने मगरमच्छ को उसकी पत्नी के लिए अतिरिक्त आम भी दिए। His wife enjoyed the mangoes but told her husband that she wanted to eat the monkey's heart. उसकी पत्नी ने आम अच्छे से खाए, उसका आनंद लिया, लेकिन उसने अपने पति से कहा कि वो बंदर का हृदय खाना चाहती है। She was a wicked alligator. वो एक दुष्ट मादा मगरमच्छ थी। The crocodile was upset. मगरमच्छ इस चीज से परेशान था। But he decided that he needed to make his wife happy. लेकिन उसने फैसला किया कि उसे अपनी पत्नी को सुखी करने की जरूरत है। The crocodile went to the monkey the next day and said that his wife had called him for dinner. अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला कि उसकी पत्नी ने उसे खाने पर बुलाया है। The crocodile carried the monkey on his back across the river. मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार ले गया।
He told the monkey about his wife's plan. और रास्ते में मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी की योजना के बारे में बताया. The monkey had to think of something quickly to save himself. यानी कि अब बंदर को एहसास हुआ कि उसे स्वयं को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ तो सोचना पड़ेगा. He told the crocodile that he had left his heart on the mango tree. और बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि उसने तो अपना दिल आम के पेड़ पर ही छोड़ दिया है. And that they needed to return. और इसीलिए उन्हें वापस लौटने की जरूरत है. On reaching the tree, the monkey climbed the tree and spoke. पेड़ के पास पहुंचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, I am not getting down. You betrayed my trust, which means our friendship is over. और बंदर बोला, मैं अब नीचे नहीं उतर रहा हूँ. तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है और अब ये हमारी मित्रता खत्म हुई है. Moral: Never betray someone who trusts you. Choose your friends wisely. यानी कि क्या? जो तुम पर भरोसा करता है उसे कभी भी धोखा मत दो और अपने मित्र बुद्धिमानी से चुनो. तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसे लगी? क्या आपको मजा आया? तो चलिए अब इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं. पहला शब्द है मैंगो. MANGO. ये शब्द तो सभी को पता है और सब इस एक चीज के लिए पूरे साल इसका इंतजार करते हैं और वो है हमारे सबके प्यारे आम. किन किन बच्चों को आम अच्छे लगते हैं बताओ मुझे. अगला शब्द है बिट्रे. BETRAY. बिट्रे यानी कि विश्वासघात. अगला शब्द है कैरीड. CARRIED. कैरिड मतलब ले जाया गया. अगला शब्द है डिसाइडेड. DECIDED. डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया. अगला शब्द है फ्रेंडशिप. FRIENDSHIP. फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता. अगला शब्द है नीडेड. NEEDED. नीडेड यानी कि आवश्यक है. अगला शब्द है वाइजली. WISELY. वाइजली यानी कि समझदारी से. बच्चों, जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें और आपको मुझे इनके उत्तर इस पैराग्राफ की सहायता से देने होंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, What did the monkey live on? And the options are A. An apple tree, B. Mango tree, or C. Banana tree. Next question. Why did the crocodile want the monkey's heart? And the options are A. His wife was hungry for it. B. He wanted to eat it himself. Or C. He wanted to keep it as a trophy. Next question. What did the monkey tell the crocodile to save himself? And the options are A. He was too tired to go. B. He left his heart on the mango tree. Or C. He needed to find some more mangoes. Next question. What did the monkey do when they reached the tree? A. Jumped into the river. B. Gave the crocodile more mangoes. Or C. Climbed the tree and refused to come down. Next question. What is the moral of the story? And the options are A. Never betray someone who trusts you. B. Always share your food. Or C. Befriend everyone you meet.
अरे वाह, आपने तो सभी प्रश्नों का एकदम सही जवाब दिया है। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अब हम कुछ शब्द देखेंगे। ये शब्द सभी थीम बेस्ड होंगे, अर्थात किसी एक विषय से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की थीम है मॉरल। आज हम मॉरल से संबंधित कुछ शब्द देखेंगे। हमारा पहला शब्द है ऑनेस्ट। HONEST। ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार। जो सत्य और निष्ठा से काम करे उसे अंग्रेजी में ऑनेस्ट कहते हैं। अगला शब्द है रिस्पेक्ट। RESPECT। रिस्पेक्ट का मतलब है सम्मान। बच्चों, दूसरों के प्रति आदर और मर्यादा के भाव को अंग्रेजी में रिस्पेक्ट ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है फेयर। FAIR। फेयर का अर्थ है न्यायपूर्ण। जो समानता और निष्पक्षता पर आधारित हो उसे फेयर कहते हैं। अगला शब्द है ट्रस्ट। TRUST। ट्रस्ट मतलब विश्वास, किसी पर भरोसा या विश्वास करना। बच्चों, हम सभी किस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं? जी हाँ, अपने माता पिता पर। अगला शब्द है करेज। COURAGE। करेज का मतलब है साहस। भय के बावजूद सही काम करने की हिम्मत को कहा जाता है करेज या फिर साहस। अगला शब्द है रिस्पॉन्सिबिलिटी। RESPONSIBILITY। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों और कामों के प्रति उत्तरदायित्व। बच्चों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? जी हाँ, हमारे माता पिता पर। अगला शब्द है ग्रैटिट्यूड। GRATITUDE। ग्रैटिट्यूड का अर्थ है कृतज्ञता, धन्यवाद देने या आभार प्रकट करने की भावना। बच्चों, जो शिक्षा हमें हमारे शिक्षक हमको देते हैं उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। अगला शब्द है पेशेंस। PATIENCE। पेशेंस का मतलब है धैर्य, कठिन परिस्थितियों में संयम और शांति रखना। इसे अंग्रेजी में पेशेंस ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है लॉयल्टी। LOYALTY। लॉयल्टी का अर्थ है निष्ठा, किसी के प्रति सच्ची और स्थिर निष्ठा को अंग्रेजी में लॉयल्टी ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है एम्पैथी। EMPATHY। एम्पैथी का मतलब है सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता को कहते हैं एम्पैथी। अगला शब्द है कंपैशन। क्या है? कंपैशन यानी कि करुणा, दूसरों के दुख या फिर पीड़ा को महसूस करके मदद करने की इच्छा। अगला शब्द है इंटीग्रिटी। INTEGRITY। इंटीग्रिटी का अर्थ है ईमानदारी, सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता और सच्चाई से काम करने को अंग्रेजी में इंटीग्रिटी ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है जस्टिस। JUSTICE। जस्टिस का अर्थ है न्याय, निष्पक्षता और सत्यता के आधार पर निर्णय लेना। बच्चों, जब हमें किसी बात का निर्णय करना होता है तो हमें जस्टिस की जरूरत होती है। अगला शब्द है ह्यूमिलिटी। HUMILITY। ह्यूमिलिटी का अर्थ है विनम्रता, अपने आप को दूसरों से ऊंचा ना समझने की भावना। बच्चों, हमें हमेशा अपने से बड़ों के प्रति विनम्र रहना चाहिए। अगला शब्द है जेनरोसिटी। GENEROSITY। जेनरोसिटी का मतलब है उदारता, दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के कुछ देने की भावना को अंग्रेजी में जेनरोसिटी ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है पीस। PEACE। पीस का मतलब है शांति, आंतरिक और बाहरी शांति के अनुभव को अंग्रेजी में पीस ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है इक्वालिटी या फिर इक्वालिटी। EQUALITY। इक्वालिटी का मतलब है समानता, सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर मिलने को अंग्रेजी में इक्वालिटी कहते हैं। अगला शब्द है सेल्फ कंट्रोल। SELFCONTROL। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है आत्मसंयम, अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। बच्चों, अपनी उन्नति के लिए हमें आत्मसंयमी होना चाहिए। अगला शब्द है कंसिडरेट।
CONSIDERATE। कंसिडरेट का अर्थ है विचारशील। दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को ध्यान रखने को अंग्रेजी में कंसिडरेट ऐसा कहते हैं। और हमारा आखिरी शब्द है ऑनर, HONOR। ऑनर का मतलब है सम्मान, सच्चाई, निष्ठा और प्रतिष्ठा के प्रति सम्मान का भाव। जब हम कोई बड़ा राष्ट्रीय कार्य करते हैं या किसी बड़े पद पर होते हैं तो हमारा ऑनर किया जाता है। तो बच्चों, इन शब्दों का उचित उच्चारण और अर्थ तो हमने देख लिया। तो चलिए अब लाइब्रेरी की किताब से एक और कहानी देखते हैं। Who is happy, the peacock or the crow? A crow lived in the forest and was satisfied with his life. But one day he saw a swan. This swan is so white, he thought, and I am so black. This swan must be happiest bird in the world. He expressed his thoughts to the swan. I felt I was the happiest bird until I saw a parrot with 2 colors. Now I think the parrot is the happiest bird in creation, the swan replied. The crow then approached the parrot. The parrot explained, I lived a joyful life until I saw a peacock. I have only 2 colors, but the peacock has multiple colors. The crow then visited a peacock in the zoo and saw that hundreds of people had gathered to see him. After the people had left, the crow approached the peacock. Dear peacock, the crow said, you are so beautiful. Every day thousands of people come to see you. When people see me, they immediately shoo me away. I think you are the happiest bird on this planet. The peacock replied, I always thought I was the most beautiful and happy bird on the planet. But because of my beauty, I am entrapped in this zoo. I have shifted through the zoo and realized that the crow is the only bird not kept in a cage. So for the past few days that if I were a crow, I could happily roam everywhere. That's our problem too. We make unfair comparisons with others and become sad. We don't value what God has given to us. Moral: learn to be happy with what you have instead of looking at what you don't have. अब देखते हैं हमारी हिंदी में इस कहानी का मतलब क्या है। कहानी का नाम है Who is happy, the peacock or the crow? यानी कि सुखी कौन है, कौवा या फिर मोर। A crow lived in the forest and was satisfied with his life. जंगल में एक कौवा रहता था और वो अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था। But one day he saw a swan. This swan is so white, he thought, and I am so black. लेकिन एक दिन उसने एक हंस को देखा और सोचा, ये हंस बहुत सफेद है, मैं तो बहुत काला हूँ। This swan must be the happiest bird in the world. ये हंस अवश्य ही दुनिया का सबसे सुखी पक्षी होगा। He expressed his thoughts to the swan. उसने हंस से अपने विचार व्यक्त किए। I felt I was the happiest bird until I saw a parrot with 2 colors. Now I think the parrot is the happiest bird in creation, the swan replied. हंस ने उत्तर दिया, जब तक मैंने 2 रंगों वाला तोता नहीं देखा था, तब तक मुझे भी लगा कि मैं सबसे सुखी पक्षी हूँ, किंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि तोता ही सृष्टि का सबसे सुखी पक्षी है। The crow then approached the parrot. The parrot explained. फिर कौवा तोते के पास पहुंचा और तोता कहने लगा, I lived a joyful life until I saw a peacock. I have only 2 colors, but the peacock has multiple colors. तोता कहने लगा, जब तक मैंने मोर नहीं देखा था तब तक मैं एक आनंदमय जीवन जी रहा था। मेरे पास केवल 2 रंग थे, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तो मुझे समझा कि मोर के पास तो कई रंग हैं। The crow then visited a peacock in the zoo and saw that hundreds of people had gathered to see him. फिर कौवा चिड़ियाघर में एक मोर के पास गया और उसने देखा
कि मोर को देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए हैं। After the people had left, the crow approached the peacock and said, "Dear peacock, you are so beautiful. Every day, thousands of people come to see you. When people see me, they immediately shoo me away. But I think you are the happiest bird on the planet." और कौवा कहने लगा, मेरे प्यारे मोर, तुम बहुत सुंदर हो। प्रतिदिन हजारों लोग तुमसे मिलने आते हैं और जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझे भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस ग्रह पर सबसे सुखी पक्षी हो। The peacock replied, "I always thought I was the most beautiful and happy bird on the planet, but because of my beauty, I am entrapped in this zoo." और मोर ने आगे उत्तर दिया, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं ग्रह पर सबसे सुंदर और सुखी पक्षी हूँ, लेकिन मैं अपनी सुंदरता के कारण इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। I have shifted through the zoo and realized that the crow is the only bird not kept in a cage. मैंने चिड़ियाघर की छानबीन की और पाया कि कौवा ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। So for the past few days, that if I were a crow, I could happily roam everywhere. इसीलिए पिछले कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा हूँ कि काश मैं अगर कौवा होता तो सुख से हर जगह घूम सकता था। That is our problem too. We make unfair comparisons with others and become sad. और यही हमारी भी समस्या है। हम दूसरों से अनुचित तुलना करते हैं और दुखी हो जाते हैं। We don't value what God has given to us. भगवान ने हमें जो दिया है हम उसकी कद्र नहीं करते। Moral: Learn to be happy with what you have instead of looking at what you don't have. जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें सुखी रहना सीखो। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? चलिए अब इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है अप्रोच्ड, APPROACHED, अप्रोच्ड यानी कि संपर्क किया। अगला शब्द है ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी यानी कि सुंदरता। अगला शब्द है कंपैरिजंस, COMPARISONS, कंपैरिजंस यानी कि तुलना। अगला शब्द है एवरीवेयर, EVERYWHERE, एवरीवेयर यानी कि सर्वत्र। अगला शब्द है गैदर्ड, GATHERED, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा किया। अगला शब्द है हैप्पीएस्ट, HAPPIEST, हैप्पीएस्ट यानी कि सबसे सुखी। अगला शब्द है इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली यानी कि तुरंत। अगला शब्द है सैटिस्फाइड, SATISFIED, सैटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट। अगला शब्द है थॉट, THOUGHT, थॉट यानी कि विचार। अगला शब्द है वैल्यू, VALUE, वैल्यू यानी कि मूल्य। बच्चों, जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं तो आइए देखें इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न। First question: What does the crow initially think about the swan? A. The swan is the happiest bird in the world. B. The swan is very lonely. Or C. The swan is not beautiful. Next question: Who does the swan say is the happiest bird? And the options are A. The crow, B. The parrot, or C. The eagle. Next question: What does the parrot admire about the peacock? A. Its singing ability, B. Its size, or C. Its multiple colors. Next question:
Why does the peacock feel unhappy despite being beautiful? And the options are A. It is trapped in the zoo, B. It has no friends, or C. It cannot fly. Last question. What is the moral of the story? A. Always compare yourself to others. B. Seek beauty above all else. Or C. Learn to be happy with what you have. अरे वाह, आपने तो सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा? ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। आज के सत्र में हमने थीम बेस्ड शब्दों को देखा और लाइब्रेरी की किताब से 2 नई कहानियां भी पढ़ी। आपने इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो आज का यह हमारा सत्र यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।